Kasol's story has never been as simple as tourists versus locals. For decades, Israeli backpackers have played a major role in shaping the valley's tourism economy. They help create demand for cafes, homestays, businesses that today support thousands of local families. Many residents still speak fondly of the friendships they built with travelers over the years. But there is also a growing feeling that the village has changed. Villagers say increasing commercialization, competition, and the rapid expansion of tourism have slowly altered the character of Kasol. Every summer, young Israeli travelers arrive in Himachal Pradesh, Parvati Valley after completing their military service. They come looking for peace, mountains, and a slower way of life. Known as Mini Israel, Kasol has been shaped by decades of Israeli backpackers. Their presence helped build cafes, homestays, and a thriving tourism economy, while also leaving a cultural imprint on the valley. For decades, places like Kasol, Pulga, and Tosh have become synonyms with this journey. But behind this idyllic landscape, the valley is also battling a growing reputation for drugs, rave parties, and excess. रेव पार्टी पहले मैक्सिमम होती थी गोवा के अंदर, घाटी हमारी घाटी में नहीं होती थी। अभी हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में यहाँ पर हर साल जो है 70 से 80 रेव पार्टियां हो रही है, जिसको ऑर्गेनाइज करने वाले यहाँ के स्थानीय लोकल बंडर का सहारा लेते हैं, वो लोग जो ऑर्गेनाइजर रहते हैं। और हर साल जो है 70 से 75 पार्टियां बज रही है। ऐसा नहीं है कि वो पुलिस या प्रशासन किसी को पता नहीं है मैम, सबको पता है। पूरी घाटी में, पूरे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में बड़े बड़े बोर्ड लगा के ये लोग जो है अपनी प्रमोशन करवाते हैं पार्टीज का। ये तो अब 3 सालों में ऐसा हो गया कि ओवरडोज के कारण 3-4 वो केसेस आ गए। ओवरडोज के कारण कुछ फॉरेनर टूरिस्ट मर गए, भले ही उनको बाद में मेडिकली प्रूफ ना किया हो कि वो ओवरडोज की वजह से मर गए, लेकिन स्थानीय लोगों को पता है कि वो लोग जो है ओवरडोज की वजह से मर गए थे। उसमें से पिछले साल एक पुलगा गांव में इंडियन लड़का था, बेंगलोर साइड का, वो भी ओवरडोज के कारण मर गया था। बाद में हमारे को नहीं पता उसको किस तरीके से उन्होंने जस्टिफाई किया या नहीं किया। तो धीरे धीरे जो है अब रे पार्टी इस साल जाके लोगों ने, मीडिया ने मुंह खोलना शुरू कर दिया। वो क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि बाहर के आए हुए टूरिस्टों ने भी उस चीज को एक्सप्लोर किया, यहाँ के लोकल लोगों ने भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। जब लोगों के बच्चे खुद बिगड़े, जब वो लोग, उनके बच्चे जो ऑर्गेनाइजर होते थे या होटल व्यवसायी है, जब उनके बच्चों ने एलएसडी, कोकीन, ब्राउन शुगर ये सारी चीजें लेनी शुरू कर दी ना, तब जाके आज पार्वती घाटी के लोगों को लगता है कि उनके बच्चों का फ्यूचर अंधेरे की तरफ जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें देखो, हिमाचल में इतने सारे बॉर्डर्स हैं, पार्वती घाटी के अंदर बोलो, आप कुल्लू के अंदर बोलो, इतने सारे बैरियर्स लगे हुए हैं, इतने सारे नाके लगे हुए हैं। हमारे यहाँ से कोई भी नीचे को जाता है तो उसकी 10 बार तलाशी होती है पंजाब के बॉर्डर तक, कि कहीं वो चर्च तो नहीं ले जा रहा है, कहीं वो अफीम तो नहीं ले जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है सरकार से और प्रशासन से, जब ये सारे केमिकली नशे जो है नीचे से आ रहे हैं, तो इनके ऊपर चेकिंग क्यों नहीं हो रही है? इनको प्रशासन चेक करके क्यों नहीं भेज रहा है? Music festivals and parties have become a defining part of Kasol's image. Local organizers say celebrations have existed here for decades, but they believe the scale has changed dramatically over the years. Alongside permitted events, residents allege that unofficial gatherings are now taking place deep inside forests and remote villages, making them difficult to monitor. While tourism remains the backbone of the local economy, many fear that an unchecked party culture, allegation of drug use, and repeated controversies are beginning to damage the reputation of an entire valley that depends on visitors for its livelihood. Following recent incidents, including the death of a foreign DJ, police have tightened surveillance and increased checks across the valley. But enforcing the law in remote mountain terrain remains a challenge. Residents say tourism has brought prosperity, but also new challenges. Police and locals point to an expanding party culture with concerns over synthetic drugs, illegal gatherings, and rising addiction. Many argue the problem cannot be blamed on tourism alone, saying local networks have also played a role.
हमने ये डिपार्टमेंट जो है कुल्लू में 2016 में शुरू किया था एंड वी जस्ट हैड 1 बेड एट दैट टाइम। 2016 में हमारे पास वॉक इन पेशेंट्स जो थे दे वर 46 इन नंबर एंड नाउ 10 years डाउन we have approximately 3,000 patients walking in every year. So that shows कि हर एक इंसान जो ड्रग्स पे फंस गया, ड्रग्स में फंस गया है, हेरोइन में फंस गया है, अल्कोहल में फंस गया है, दे वांट टू क्विट, वो छोड़ना चाहते हैं और अपने आप से छोड़ना चाहते हैं। सो वी डोंट फोर्स देम टू कम टू द सेंटर। हमारी आईईसी एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, लोगों तक पहुंचते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट एंड दे टेल देम दैट ऐसी एक फैसिलिटी अवेलेबल है जहाँ पे ट्रीटमेंट के जरिए, मेडिसिन के जरिए जो है आप नशा छोड़ सकते हैं। For thousands of families, tourism remains the backbone of the local economy. Yet many residents fear the valley is losing the peace that first made it famous. Today, Parvati Valley stands at the crossroads, trying to preserve its natural beauty and unique culture while confronting the pressures that comes with its growing popularity. और सबसे बड़ी बात है कि जब ये रेप पार्टियां हो रही, इनकी परमिशन दे कौन रहा है? जहाँ पर ये रेप पार्टीज हो रही हैं कसोल के अंदर आज की डेट में, उससे 4 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस थाना है। दोनों तरफ को 4 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस थाने हैं। 3 किलोमीटर की दूरी पर वन विभाग वालों का ऑफिस है। तो मेरा तो मानना ये है कि बिना मिली भगत के ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है। जैसे रेप पार्टीज हो रही है या कोई लोग ओवरडोज से मर रहे हैं या किसी होटल में रोज आए दिन हमारे को सुनने को मिलता है कि कोई नशे के कारण कोई लड़की मर गई, कोई लड़का मर गया। तो हम चाहते हैं इन चीज़ों के ऊपर पार्वती घाटी के अंदर अंकुश लगे। ये घाटी रेप पार्टीज के लिए नहीं है। इस घाटी के अंदर 18 से ज़्यादा ट्रैक रूट है और 18 से ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। हम इस घाटी को एक टूरिज्म डेवलपमेंट के तौर पर देखना चाहते हैं। रेप पार्टी या नशीली पार्टियों के उसमें हम इसको नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो हमारे बच्चों का भविष्य नहीं है। हमारे बच्चों का भविष्य यहाँ के जंगल है, यहाँ के नदी नाले हैं, यहाँ की ज़मीन है, यहाँ की बागबानी है और यहाँ के जंगल है और यहाँ के स्नो पॉइंट जितने भी हमारे ग्लेशियर हैं, लेक्स हैं, वो सब है। ये हमारा फ्यूचर नहीं है। आज पार्वती घाटी के जितने भी माउंटेन्स हैं, जहाँ तक तो देखो पुलिस और वन विभाग जाता है, वहाँ तक तो लोगों ने कुछ नहीं किया है। लेकिन उसके ऊपरी एरिया में जहाँ हम लोग एक्सपीडिशंस पर जाते हैं, ट्रैक पर जाते हैं, हम लोगों को ये चीज़ें देखने को पिछले 15 सालों से हम लोग देख रहे हैं। इसका विस्तार बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। हम जो है प्रकृति प्रेमी है। मैं कई बार जो है बहुत सारे क्लीनिंग ड्राइव्स कर चुका हूँ, पौधारोपण कर चुका हूँ, गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक कर चुका हूँ कि हमारा जो फ्यूचर है वो नशा नहीं है। इस तरह की नशीली पार्टियां हमारा फ्यूचर नहीं है। हमारा फ्यूचर है कि हम अपने यहाँ आने वाले अतिथि को एक अच्छी टूरिज्म सर्विस फैसिलिटी दे सके। Even as the Himachal Pradesh government explores regulated cultivation of cannabis for medicinal and industrial purposes, officials have made it clear that recreational charas remains illegal. But for many people living in Kasol, the bigger concern today is the growing presence of synthetic drugs and the impact they are having on local communities. As authorities tighten enforcement after recent incidents, the bigger question remains: can Kasol protect both its economy and its identity at the same time? This is Sakshi Mehra reporting from Kasol for the Fact.